Hello everyone, welcome to today's video. In this video, we are going to talk about how to attack complex number questions, and we will be talking about JEE Main PYQs here. Selected PYQs because JEE Mains is near, so advanced के पहले advanced की बात करेंगे, but right now it is very important to stay focused on JEE Mains, right? I've selected a few PYQs and we are going to discuss because complex number एक ऐसा topic है which instills fear in a lot of students. What happens is they get confused about all these different powers, these notations, this mod of Z bar, how to apply these formulas effectively, then find out inequalities, right? ये सब चीजें दिक्कत देती हैं. So we are going to simplify them so much in this video and understand how to approach these things with a clear mind and how to do them effectively. ठीक है? So also, the Calculus Mastery course is still live and the registration ends at 10th December 11:59 p.m. So आपको अगर वो लेना है, you can check out the description for the link and also buy because a lot of students have already bought and the coupon is not valid after 100 students buy it and it's almost near that. So anyway, let's begin with the video. You can understand कि from this question that P and Q are real numbers and आपके पास ये इक्वेशन दिया गया है 1 minus root 3i to the power 200 और इस तरफ है 2 to the power 199 और into P plus IQ मतलब आपको P and Q निकालना है करेक्ट and then once you get P and Q then this is a very easy task to find out what equation has these roots जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने सीखा होगा और अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो में आई विल एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड आउट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन उनके रूट्स राइट तो हाउ डू आई प्रोसीड इट हाउ डू आई प्रोसीड विद दिस प्रॉब्लम सो अंडरस्टैंड जब भी आपके पास इस तरीके का 2 टू द पावर 200 ऐसी कुछ चीजें आ जाए यू हैव टू यूज द थिंग विच इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ये माइनस भी हो सकता है इसका पावर अगर आप कोई पॉजिटिव इंटीजर n ले लेते हो इसका आंसर आ जाएगा cos ऑफ n थीटा प्लस माइनस आई साइन ऑफ n थीटा मतलब जो पावर है वो कंप्लीटली थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज डी मॉइवर्स थियरम दिस इज कॉल्ड डी मॉइवर्स थियरम ठीक है सो वी आर गोइंग टू यूज इट कैसे सो अप्रोच क्या होगा मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा किसी भी क्वेश्चन को बट आई एम गोइंग टू टेल यू द अप्रोच तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस देखो फर्स्ट ट्राई एंड थिंक कि ओके हाफ एंड रूट 3/2 आर सम वैल्यूज ऑफ साइन एंड कॉस राइट तो उस हिसाब से आई कैन रिप्रेजेंट इट सो हाउ डू आई डू दिस सो थिंक ऑफ इट लाइक दिस ये जो एक्सप्रेशन है इसको ले लो आप एंड इसको आप लिख दो 2 इंटू हाफ माइनस रूट 3/2 इंटू आई का पावर 200 और फिर 2 कॉमन ले लो सॉरी यहाँ पे 2 होगा एक एंड 2 को बाहर ले लो 2 टू द पावर 200 होल इंटू हाफ माइनस रूट 3/2 आई का पावर 200 करेक्ट नाउ कैन यू एक्सप्रेस दिस हाफ माइनस रूट 3/2 आई इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन यू कैन कैसे तो नोटिस करो कि हाफ क्या होता है कॉस ऑफ 60 डिग्री है ना कॉस ऑफ पाई बाई 3 बट साइन ऑफ पाई बाई 3 विल नॉट बी दैट बट we can write this like this 2 to the power 200 whole into cos of pi by 3 minus I sin of pi by 3 माइनस लिख के हम लिख सकते हैं टू द पावर 200 एंड डी मोइविस थ्योरम क्या कहता है दिस शुड बी इक्वल्स टू एग्जैक्टली 2 to the power 200 होल into cos of 200 pi by 3 minus I into sin of 200 pi by 3 ठीक है and now you can reduce the sines and cos using the formula जो कि रिडक्शन फॉर्मूला हो जाता है राइट सो यू कैन यूज द पीरियोडिसिटी कि 2 पाई के बाद सब कुछ रीसेट हो जाता है सो यू मस्ट हैव लर्न दिस इन क्लास 11 कैसे इसको रिड्यूस करना है दिस विल कम आउट टू बी माइनस कॉस पाई बाई 3 minus I sin pi by 3 and you will get the answer. Then you basically 2 to the power 100 and 2 to the power 199 will get cancelled and फिर आपको P and Q मिल जाएगा from which you can find out the roots. Remember अगर alpha and beta are the roots of a quadratic equation, the equation is given by x square minus of alpha plus beta into x plus alpha beta equals to 0. Okay. And this is the best way to approach any problem जहाँ पे भी आपके पास power दिख जाए ऐसा. So you have to use De Moivre's theorem. Remember that. And De Moivre's theorem is very easy. I have just stated it here. इसको आप use करो in multiple problems. You will get used to applying this whenever you see powers like 100, 200, stuff like that. And these questions are repeated. ठीक है तो इस तरीके के questions आते रहते हैं JEE Mains में. There are a fixed number of patterns which they will follow to give you questions from any topic. तो अभी complex number की बात करें तो this is one of the patterns.
let's talk about this one. If for the complex number z satisfying a z minus 2 minus 2y less than equals to 1, the maximum value of 3iz plus 6 is attained at a plus ib, then a plus b is equals to, again, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, विच इज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी. दैट इज द की टू एवरी इनइक्वालिटी प्रॉब्लम फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एटलीस्ट फॉर जेई. ठीक है, तो क्या होता है ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी? सो लेट्स सी ये क्या होता है. वी कैन बेसिकली राइट मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2. ये चीज लेस देन इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ z1 प्लस z2, जो कि लेस देन इक्वल्स टू होता है मॉड z1 प्लस मॉड z2. दिस इज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी. एंड ये बीच वाला टर्म, आप इसका मैक्सिमम भी आपको पता है, आपको इसका मिनिमम भी पता होता है. तो अभी हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग. सो जो दिया है मेरे पास, कैन यू सी कि वो चीज 3iz+6 जो है, 3iz+6, आपको पहले इसको देख के आपको समझना है कि ओके, आई हैव टू एक्सप्रेस दिस सम हाउ इन दिस फॉर्म. ठीक, तो पहले तो मुझे z चाहिए, यहाँ पे 3iz है, तो व्हाट आई डू इज आई टेक 3i कॉमन. तो अगर मैं 3i कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा? 6 को आप लिख सकते हो -2i × 3i, क्योंकि आई स्क्वायर तो -1 होता है एंड 6 होता है 2 × 3. सो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? आई थिंक यू कैन, करेक्ट. एंड मॉड ऑफ 3i को हम बाहर ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है कि मॉड ऑफ z1 z2 क्या होता है? मॉड z1 × मॉड z2, विच मीन्स इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ 3i इंटू मॉड ऑफ z-2i. मॉड ऑफ 3i सिंपली 3, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स z-2i. ओके, नाउ इसको हम कैसे लिखें? सो इफ यू नोटिस हियर कि इसको मैं लिख सकता हूं 3 मॉड ऑफ z-2 - 2i प्लस 2. और यहाँ पे ये मेरा बन जाएगा z1, ये मेरा बन जाएगा z, विच इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ z-2 - 2i प्लस 2. और इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 3. सॉरी, यहाँ पे टोटल एक 3 भी मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 3 × 3 इक्वल्स टू 9. बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज वी हैव टू राइट इट इन दिस फॉर्म, करेक्ट. और यहाँ से आपको आपका आंसर मिल जाएगा. सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द ट्रायंगल इनइक्वालिटी, कि हाउ टू फाइंड आउट दिस ट्रायंगल इनइक्वालिटी, हाउ टू गेट दिस आंसर्स, राइट? ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन. ये अनदर पैटर्न है विच यू विल सी विल आल्सो गेट रिपीटेड प्रोबेबली इवन इन दिस लेक्चर एज वेल, कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को निकालना होता है. सो लाइक अनदर क्वेश्चन, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z-i/z-1 इज प्योरली इमेजिनरी. तो कभी कभी आपको प्योरली इमेजिनरी देगा, कभी कभी आपको प्योरली रियल देगा. वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है? z प्लस जेड बार बाई टू. और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है? z माइनस जेड बार बाई टू आई. ठीक है, तो अगर आपको कह रहा है कि प्योरली इमेजिनरी है, विच मीन्स इट्स रियल पार्ट मस्ट बी जीरो, विच मीन्स दिस थिंग मस्ट बी जीरो. तो z मस्ट बी z प्लस जेड बार मस्ट बी जीरो. और अगर ये प्योरली रियल कहता, सो वी वुड हैव अज्यूम्ड z इक्वल्स टू जेड बार. ठीक है, नाउ अगर इसका z-i/z+-1 जो है, ये प्योरली इमेजिनरी है, विच मीन्स आई कैन से कि दिस इज इक्वल्स टू आई इंटू सम k, है ना? और इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि z-i is equals to, because it's purely imaginary, so imaginary number into some k which is a real number, it is valid, right? Ik whole into z-1. यहाँ से आप z का सॉल्व करो, क्योंकि you want expression in terms of z, right? तो आपको मिल जाएगा z-i equals to ik into z minus ik. और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, आई थिंक 1 माइनस आई के यहाँ से कॉमन चला गया, और ये आ गया आई होल आई माइनस आई के. तो आई माइनस आई के डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई के. सो आई होल इंटू 1 माइनस के बाई 1 माइनस आई के, ये आपका वैल्यू आ जाएगा फॉर जेड. ओके, एंड आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है. यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस. ओके, लेट्स सी कैसे निकालेंगे. तो पहले इसको मैं अगर रैशनलाइज भी कर दूं तो दिस बिकम्स आई होल इंटू 1 प्लस आई के. और यहाँ पे रह जाएगा मेरा 1 माइनस के बाई 1 प्लस के स्क्वायर, राइट? और ये क्या बन जाएगा? दिस वुड सिंपली बिकम आई माइनस के इंटू ये चीज, करेक्ट. तो जैसे ही आपको z का वैल्यू मिल गया, अप्लाई द ट्रायंगल इनइक्वालिटी. और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? एज यू नो, मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ 3 + 3i, करेक्ट. एंड यू अंडरस्टैंड कि मॉड ऑफ z जो है, वो वी कैन फाइंड आउट डायरेक्टली फ्रॉम दिस, बिकॉज मॉड ऑफ z क्या होगा? मॉड ऑफ z शुड बी सिंपली 1 माइनस के
by 1 plus k square. The denominator is always positive, correct? But we need to understand कि ये 1 minus k क्या होगा. एंड यू नो कि मॉड जेड का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है. सो के मस्ट बी. सो यहाँ से मुझको समझ में आ रहा है कि ये जो मॉड ऑफ 1 माइनस के है, यहाँ पे के, मैं अगर मैं इसको मिनिमम मानना चाहूँ तो मिनिमम वैल्यू इट कैन अटेंड इज 1, because for k equals to 1 this will be 0. और इस तरीके से you can find the minimum value by putting in the value of mod z here. Again, I'm not going to show any calculation here because if it was a calculative video I would have solved the entire problem. और इसको और एक तरीके से भी आप कर सकते हो. So I will not talk about the different ways you can approach it. You can also do it using e to the power I theta. But what we are going to focus on कि अप्रोच कैसे करना है. तो जब भी आप देखो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी इज गोइंग टू बी हैंडी इन दिस केसेस. एंड प्योरली इमेजिनरी है तो z प्लस z बार को 0 बना दो, विच इज अनदर वे. यू सिंपली सेट z प्लस z बार इक्वल्स टू 0 एंड देन सिंपली सॉल्व फॉर z. ठीक है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन अगेन. नाउ another same type of question, you see कि ये रिपीट होते हैं. These things get repeated so much कि z एक complex number है and you have z minus I by z plus 2i belongs to real, which means it's a purely real number, है ना. एंड अगर ये प्योरली रियल नंबर है, which means its imaginary part must be 0, which means z equals to z bar. If you understand from this definition, imaginary part is z minus z bar by 2i होगा ये. So this is 0 because it's a purely real number, which means z minus z plus 2i should be equals to whole bar of z minus I by whole bar of z plus 2i. अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा z minus I by z plus 2i, और ऊपर आ जाएगा z बार प्लस आई, क्योंकि माइनस आई का बार होता है प्लस आई, एंड नीचे आ जाएगा z बार माइनस 2i. ओके. अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दो तो ये क्या आएगा, z इंटू जेड बार आ जाएगा मॉड z का स्क्वायर. फिर ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, राइट, z माइनस आई और z बार माइनस 2i. फिर आ जाएगा माइनस 2iz, फिर आ जाएगा माइनस आई जेड बार, और लास्टली आ जाएगा 2i स्क्वायर विच इज माइनस 2. सिमिलरली राइट हैंड साइड आ जाएगा मॉड z स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2i जेड बार, फिर आ जाएगा आई जेड, एंड फिर आ जाएगा प्लस 2i स्क्वायर विच इज माइनस 2. सो माइनस टू कैंसिल, मॉड जेड स्क्वायर कैंसिल. आपके पास फाइनली क्या आ गया आंसर कि सबको मैं अगर एक साइड ले आऊं तो ये बन जाता है मेरा, z को कॉमन लें तो मेरे पास है i प्लस 2i, और z बार को कॉमन लें तो हमारे पास वापस है i प्लस 2i, विच मीन्स कि मुझे मिल रहा है z प्लस z बार इज इक्वल्स टू 0. जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ z इज 0, which means z is purely imaginary. Z is of the form ik. तो z क्या है, प्योरली इमेजिनरी एक नंबर है, राइट. सो दिस वुड मीन कि जो z होगा, z में क्या आएंगे, ऑब्वियसली s कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट विल बी रॉन्ग, राइट, क्योंकि z इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर. ओके, s इज अ स्ट्रेट लाइन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. तो जब अब भी आपको लोकस निकालना हो, यू सिंपली डू x प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई के, है ना. यहाँ से आपको मिल जाएगा आंसर. तो x इज 0 एंड y इज k, which means the equation of the line is क्या, y is k. So s is a straight line in the complex plane. ठीक है, because you directly get कि real part of z is 0. Got it? तो आपको x plus i y यूज करके लोकस निकाल लेना है. So for this your coordinate geometry must be at least decent to understand immediately कि क्या करना है. Again we use the same formula, है ना. तो कुछ भी यहाँ पे डरने वाली बात नहीं. You simply have to use the formulas correctly. ओके, लेट्स टॉक अबाउट अनदर इक्वेशन व्हिच इज ऑफ द सेम टाइप. तो अभी आपको पता चल गया होगा हाउ टू अप्रोच दिस. यू सिंपली राइट 2 टू द पावर 100, इसमें 2 बाहर लेके, एंड इसको आप लिखो √3/2 प्लस i बाई 2 की पावर 100. एंड अगेन इसको आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 100 इंटू कॉस ऑफ, अब ये बन जाएगा आई थिंक पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6 की पावर 100. ऑल्सो इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, यहाँ पे वी डिड द सेम थिंग, राइट. यहाँ पे भी डिड द सेम थिंग. ये cos पाई बाई 3 था, बट यहाँ पे ये √3/2 है तो cos पाई बाई 6 है. एंड अगेन अप्लाइंग डी मॉर्गन्स फॉर्मूला, दिस शुड बी cos ऑफ 100 पाई बाई 6
प्लस आई इंटू साइन ऑफ 100 पाई बाई 6 और आपको ये वापस रिड्यूस करना है। करोगे तो ये माइनस कॉस पाई बाई 6 और ये आई थिंक प्लस साइन पाई बाई 6 ऐसा कुछ आ जाएगा, which you have to equate with this, and of course 2 to the power 99 and 2 to the power 100 कट जाएंगे and you will get your P and Q. And then again आपको यूज करना है the formula कि अल्फा बीटा का रूट है for a quadratic equation. You simply can write this as x square minus alpha plus beta whole into x plus alpha beta equals to 0. Got it? So again, see, इस तरीके के questions keep getting repeated every year and probably इस year भी वही आने वाला है, अगले year भी वही आएगा. So you have to be comfortable in this kind of questions and how to approach them. So doing a lot of this PYQs and understanding how to approach them. ये देख के ही I should understand कि I have to use De Moivre's theorem. This is very important. Again, last question for this session. तो मुझे जल्दी से करना है इस क्वेश्चन को, राइट? सो दैट इज द पॉइंट कि जेई में कुछ भी क्वेश्चन, आई हैव टू डू इट क्विकली. सो एन इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस, करेक्ट? सो व्हाट इज द इक्वेशन इज जेड स्क्वायर बाय प्लस 3z बार. अगर जेड स्क्वायर प्लस 3z बार मेरा इक्वेशन है, देन आई कैन ऑलरेडी सी z इक्वल्स टू 0 इज अ सोल्यूशन. तो एक सोल्यूशन मेरे पास आ गया. अब अगर z नॉट इक्वल्स टू 0 है, यूज द प्रॉपर्टी. क्या? कि ये क्या होता है? z बार होता है मॉड z स्क्वायर बाई z, which is equals to 0, क्योंकि z into z bar is mod z square multiply by z because z is not 0. We are assuming अभी कि z is not 0 because z equals to 0 एक solution है. We have already counted it. Multiply by z, you get z cube equals to minus 3 mod z square, which is some real number, alpha, where alpha is real, right? And you know this complex equation has three solutions because it's a third degree equation. It has three solutions and there are one solution here. So total number of solutions कितने हुए? 3 plus 1 4 डायरेक्टली मिल गया. Why would you even need to solve it? और अगर चार solutions हैं, what is the sum of this infinite series? यहाँ पे ऊपर infinity लिख दो. This is a bit messed up. Let me write like this. Yeah. So 4 to the power k. This is an infinite GP with common ratio 1 by 4. 1 by 1 minus 1 by 4. क्या बन जाएगा ये? 3 by 4. 4 by 3. ये हो गया आपका आंसर. 10 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे अच्छे से करने में इसको, राइट? एक प्रॉपर्टी यूज करना है हमको विच इज z इंटू जेड बार इज स्मॉट z का होल स्क्वायर. सो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को यू कैन अटेम्प्ट वेरी इजीली एंड यू कैन डू दिस क्वेश्चंस इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, बट यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल विद द बेसिक्स और आपको ये अप्रोचेस धीरे धीरे फेमिलराइज करनी होगी. सो वेरी शॉर्ट टाइम इज लेफ्ट. Please do your best and try and prepare your best. And also, कोई भी doubt हो, let me know in the comment section. Thank you, and we'll see you in the next video.